Hi friends, welcome on Yourpedia, and I want to share something with you. I started using this LinkedIn recently. I mean, couple of I'll say months back. I started using it, and this is my first post on LinkedIn which went viral. किसको बोलते हैं वायरल होना पोस्ट का? जब 1 लाख के आसपास आपके इम्प्रेशन आ जाए किसी पोस्ट पे, आपने कोई पोस्ट डाला and you start if you get impression around 1 lakh something, and hundreds of people start liking that particular post, that is called it went viral. So ये मेरी पहली पोस्ट है जिसमें I'm hitting 1 lakh and impression, and that means that people have observed it. Now what is this post all about? I did not want that my YouTube followers they don't get the input which was there in this particular post. So इस post के अंदर मैंने Scandinavian countries का बात किया था. I told that Scandinavian countries are the best for pursuing PhD programs for a couple of reasons, and I gave 16 reasons is that 16. And believe me friends, Scandinavian countries जैसे Sweden, Denmark, Finland, Norway, इनमें weather may be harsh for someone who cannot stay in winter. If you are not liking winter, it can be harsh, but otherwise it is the best destination as of now if you want to pursue PhD kind of courses. Let me share with you why it is so. So this is my LinkedIn profile in case you are not associated with me so far, so you can join my LinkedIn profile also. So you will find Dr. Vijender Singh. If you go there, you will find this. So this was my post, friends. Very interesting facts about PhD in Scandinavian nations. So what were the reasons? And I was talking about Sweden, Norway, Denmark, Finland, these kind of countries. इनमें क्यों सबसे आसान है? मैंने I gave couple of reasons. I started that okay, in these countries, Scandinavian countries, when you do PhD, you are not a student. You are treated as employee of the university or the institute or the college. So you get the salaries, you get your job is for particular fixed duration, and आप कंपैरिजन अगर करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, अगर ये सब चीज़ है तो पीएचडी तो करना बनता है. वी कैन डू पीएचडी. अगर ये सब चीज़ मिल रहा है तो पीएचडी कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात, एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट के लिए, एवरेज इंडियन स्टूडेंट जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, आईआईटी एनआईटी बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स नहीं है, और अगर आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स एवरेज हैं, स्टिल यू aspire to join the best university in the world, then Scandinavian countries can give you that particular option and it can be the best for you. So उस perspective से this particular this can be the best destination. क्यों best हैं Scandinavian countries? Best salaries in PhD. मतलब more than 1 lakh rupees per month you can save. मतलब scholarship maximum जो मिल रहे हैं वो Scandinavian countries में मिल रहे हैं all over world. More than US, more than Australia, more than Canada, more than any other place. Maximum scholarships are in Scandinavian nation. I told you comparison जो मैंने बताया, you can save more than 1 lakh per month. So duration is the another criteria. Indian student says कि यार PhD में बहुत टाइम नहीं हम दे सकते, तो 3 से 3.5 साल का फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है. 3 साल के बाद तो तुम्हें धक्का मार देते हैं यूनिवर्सिटी से कि जाओ अब तुम्हारा ड्यूरेशन खत्म हुआ, तुम्हारी जॉब खत्म हुई, अब तुम जॉब ढूंढो और इसको पार्ट टाइम में कर लो. एंड देयर इज अ बेस्ट पार्ट. 3 साल के बाद आप पीएचडी से बाहर निकाल दिए जाओगे और आप जॉब करोगे. आपको जॉब मिल जाती है वहां पे आसानी से, और ऐसा नहीं निकाल दिए जाओगे कि मैं कहाँ जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा. नॉट लाइक दैट. आपके लिए वो अच्छी चीज़ है कि आप 3 साल के बाद जॉब में चले जाते हो अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अदरवाइज आप कंप्लीट करके जॉब में चले जाते हो. ये इंडस्ट्रियली फंडेड प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो. अब आप बोलोगे सर पीएचडी में जॉब कहाँ मिलेगी, मेरे को कौन इंडस्ट्री जॉब करेगी? देयर इज अ कैच, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट. जो प्रोफेसर आपको पीएचडी करवाएगा वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पीएचडी करवाएगा. एक इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होगा, स्पॉन्सर प्रोजेक्ट होगा, जो आपको इंडस्ट्री जो प्रोफेसर करवा रहा होगा, आप उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे और उस इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो क्योंकि आपने उसका प्रोजेक्ट किया है. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है. सैटरडे संडे को तुम काम नहीं करते हो, वर्क स्ट्रेस कोई होती नहीं है. जैसे आप देखते हो बस आप सुसाइड कर लिए, पीएचडी वाले ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, देयर इज नो रीजन टू डू दैट. यू आर एंजॉइंग योर लाइफ देयर. मिनिमम 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज आपको हर साल में मिलता है. ये मेरे को कैसे पता? कि जब मैं किसी अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो बोलता है कि साहब मैं अभी यूएस में गया हूँ, मैं अभी जापान गया हूँ, मैं अभी इटली गया हूँ,
मैं अभी यूके गया हूं, तो बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का फुली फंडेड मिनिमम 2 मिलती हैं, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है आपको, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ पीएचडी का बहुत अच्छी मिलती हैं, या आप एकेडमिक्स में जाना चाहें या आप इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहें, और पूरा का पूरा यूरोप आपके लिए ओपन है। और यूनिवर्सिटीज़ आपको मेडिकल अलाउंस तो देते ही है, घर जाने का भी आपको पैसा मिलता है, और पूरे 1 साल में, क्योंकि एक जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको 1 मंथ के आसपास छुट्टी मिलती है पूरे साल में। जो वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडे, वो तो है ही, उसके अलावा आपको 1 मंथ का अप्रॉक्सीमेटली छुट्टी मिलता है। हार्श विंटर वेदर है तो आप इसको अवॉइड करें, बहुत बड़ी सिटीज़ नहीं है, हैपनिंग सिटीज़ नहीं है। जैसे आप LA LV ढूंढते हैं, लास वेगस या लॉस एंजेलिस में आप जाना चाहते हैं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, लाइफ कूल है, अच्छी लाइफ है। लाइफ आप अगर कूल लाइफ लीड करना चाहते हो, क्वालिटी लाइफ, दिस इज द प्लेस फॉर यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, आप इनमें जरूर जाके अच्छा करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। तो अब अगर आपने मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है लिंक्डइन पे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट माय लिंक्डइन प्रोफाइल इज। आप इसको देख के, आई एम वेरी श्योर यू आर स्मार्ट एनफ, आप इसको देखेंगे मेरा प्रोफाइल, एंड यू कैन गेट एसोसिएटेड विद मी। लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद यू एंड मेंटर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।